نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ تزکیہ درس میں چل رہا ہے، اور ہمارا پچھلا پڑاؤ تھا آیت نمبر 23 کی تفسیر پر۔ اس سفر میں ہم پہنچے ہیں اب تک آیت نمبر 23، اور اسی آیت کی تعلق سے بعض باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھی گئی تھیں، اور آج انشاءاللہ اس آیت کی مکمل تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 24، آیت نمبر 24، تو یہ 23، 24 اور اس کے بعد کی بھی آیت جو ہے 25، یہ آیتیں یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں، یوسف علیہ السلام کی اس سٹوری میں بہت اہمیت رکھتی ہے، یعنی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ان آیتوں کو خاص طریقے سے آپ بہت غور سے دل لگا کر کے اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے اٹینشن کے ساتھ جو ہے آپ ان آیتوں کی تفسیر سنیں اور ذہن میں رکھیں۔ بات پچھلے درس میں آئی تھی کہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 23 میں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ ان کو بہکانا، پھسلانا، بہلانا شروع کیا اس خاتون نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے۔ اور اس ٹکڑے کے اندر جو بھی پوائنٹس تھے ہم نے وہ سب آپ کے سامنے پچھلے درس میں ذکر کیے تھے، اور ہمارے لیے جو نصیحت کے پہلو ہیں، جو درس ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ باتیں بھی ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، بہت بہلایا، بہت پھسلایا، کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا، پہلے ترغیب دی، رجھایا کہ مان جائیں یوسف اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے۔ جب جو ہے یہ چیزیں کام نہیں آئی تو ڈرانے اور دھمکانے پر بھی اتر آئی۔ یہ ساری چیزیں راودہ کے اندر ہے، یعنی یہ ساری میننگ جو ہے پائی جاتی ہے۔ کنٹینیو وہ اس چکر میں لگی رہی، اور یوسف علیہ السلام اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت سے وہ اپنے آپ کو بچاتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن ہوا یہ، اس کا اب ذکر ہے کہ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، کہ اس نے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازوں کو ایک ایک کر کے بند کر دیا۔ کس نے؟ اس خاتون نے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ،
अजीज मिस्र की बीवी ने, जिसके बारे में बात चल रही है, आज के दर्स का ये पहला टुकड़ा है मेरे भाइयों और बहन, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कुरान में किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जिक्र किया है। नोट कीजिए क्या कहा है, वगल्लक़तिल अबवाब, और उसने दरवाजों को बंद कर दिया। गल्लक़ा ये फेल अरबी जबान का, वर्ब ये अरबी जबान में, अल अबवाब ये अरबी जबान में बाबुन का प्लूरल फॉर्म है। ये बाबुन सिंगुलर फॉर्म होता है, उसी का ये प्लूरल फॉर्म है अल अबवाब, दरवाजे दरवाजे। वगल्लक़तिल अबवाब, और उसने बंद कर दिए दरवाजे। गल्लक़ा बंद कर दिए, अरबी में बंद करने के लिए अगलक़ा भी कहते हैं। कहते हैं हम किसी को अगलिक़िल बाब, आप इंग्लिश में कहते हैं क्लोज द डोर, अगलिक़िल बाब अरबी में कहते हैं अगलिक़िल बाब, अगलिक़ अल बाब, क्लोज द डोर। लेकिन यहाँ कहा गल्लक़ा, अगलक़ा नहीं कहा है। ये सोचने की बात है मेरे भाइयों और बहन, जो भी थोड़ी अरबी जानते हैं उसे नोट करें। क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगलक़तिल अबवाब नहीं कहा है, गल्लक़तिल अबवाब का, गल्लक़ा गल्लक़ा गल्लक़ा। इससे यहाँ पे दो फायदे होते हैं, अरबी में ये लफ्ज इस्तेमाल करने से दो फायदे होते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको कुरान में दो लफ्ज और यूज किया जाता है कुरान के नाजिल करने के से, दो वर्ब ये। एक है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान के बारे में कि अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया, अंज़लनाहु हमने नाजिल किया, और नज़्ज़लल किताब भी आया हुआ है। नज़्ज़ला 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 भी आया है कुरान के लिए, अंज़ला भी आया है, और दोनों के माने उतारने के होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों का जो इस्तेमाल है उसके लिहाज से दोनों में फर्क कैसे है कि अंज़ला क्या है, पूरी किताब एक मरतबा उतार दिया, नाजिल कर दिया, और नज़्ज़ला में यह है कि थोड़ा थोड़ा जरूरत के लिहाज से उसे नाजिल करते गए। उस माना को जहन में रखिए, और यहाँ पर अगलक़ा और गल्लक़ा पे गौर कीजिएगा। अगलक़ा अल अबवाब, सारे दरवाजों को बंद कर दिया, तो क्या होगा, सारे दरवाजों को एक ही मरतबा बंद कर दिया। और जब ये कहा गल्लक़तिल अबवाब, तो इसमें दरवाजों के बंद करने की कैफियत क्या हो रही है उसे आप नोट कीजिएगा। वो क्या है कि गल्लक़तिल अबवाब, थोड़ा थोड़ा करके दरवाजों को, यानी एक एक करके, वन बाय वन, जैसे जैसे यूसुफ को लेकर के ये औरत आगे बढ़ रही है, तो जिस दरवाजे से गुजर रही है साथ में उस दरवाजे को बंद करके आगे जा रही है। एक एक करके 7 दरवाजे, ये जैसा कि रिवायतों में जिक्र किया जाता है कि ये 7 दरवाजे थे, एक एक करके उसने बंद किया। जरा गौर कीजिएगा इस पर, यही जो है उसका पहलू है गौर करने का। ये लफ्ज गल्लक़तिल अबवाब, हमने आपको बताया था कि दो चीजें हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, और एक और बात जिक्र करेंगे आखिर में, वो जो है तो तीसरी जो है बात रहेगी। तो अब आप जो है पहली बात क्या कहा है, गल्लक़तिल अबवाब, अगलक़तिल अबवाब नहीं कहा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि इस खातून ने यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया, पहले अपनी जो है खादिमा को भेज करके, और कमरे में उनको छोड़ करके अपनी खादिमा से कहा अब जाओ सारे दरवाजे बंद कर। ऐसा कुछ नहीं, वहीं से ऑर्डर दिया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वह क्या है, यहाँ पर यूसुफ को लेकर के औरत, कुछ काम है, आओ। जैसे ही जो है ये साथ में चल रहे हैं, दरवाजा आया, बंद किया।
फिर दूसरे दरवाजे से गुजरे, बंद किया। ऐसे ही 7 दरवाजे के बाद जाकर के वो कमरा था जिसमें ये औरत रहती थी। और अपनी उस तन्हाई की जगह में जहाँ पे वो रहती है, उसका शौहर रहता है, उस जगह में यूसुफ को लेकर के पहुंच जाती है। और क्या किया? गल्लक़तिल अबवाब। ये पहली बात। दूसरी बात, बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ जिक्र किया, ये दूसरी बात जिक्र की है कि गल्लक़ा में एक माना ये भी है अरबी ज़बान में कि आप जो है कोई चीज बहुत अच्छी तरह से कर दे। मैं आपको 2-3 जो है अल्फाज अरबी के बताऊंगा इसके लिए। जैसे अरबी में कहते हैं कि क़तअ, क़तअ ही कट, उसने काटा। क़तअ का माना क्या है? उसने काटा, ही कट। और क़तअ, क़तअ जैसे ये गल्लक़ा है, वैसे ही क़तअ जब कहते हैं अरबी में तो उसका माना होता है बहुत अच्छी तरह से काट दिया। इसको हम उर्दू में कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। क़त्ता यानी क़त्ता बाबे तफ़ील कहते हैं इसको। तो बाबे तफ़ील में थोड़ा मुबालगे का माना भी होता है अरबी ज़बान। तो गल्लक़ा में मुबालगे का माना भी पाया जा रहा है। यानी गल्लक़ा का माना क्या करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से बंद किया। दरवाजे सिर्फ ऐसे ही बंद करके नहीं, बल्कि सिर्फ बंद नहीं किया, बल्कि अच्छी तरह से बंद किया। इतनी अच्छी तरह से बंद किया कि इन दरवाजों को कोई इन दरवाजों से देख न सके। कहीं भी कोई ऐसी जगह न रह जाए दरवाजे में जहां से अंदर देखा जा सकता हो, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहे। किसी के आने का कोई जो है इम्कान ना हो और ना किसी के देख लेने का कोई इम्कान हो। इस बदकारी के लिए इस औरत ने देखिए किस तरह की तदबीर इख्तियार की, किस तरीके का तरीका इख्तियार किया और इसकी प्लानिंग कितनी परफेक्ट अंदाज की हो रही है। वो आप गौर कीजिए कि इसने सारे दरवाजे बंद किए, जाते जाते सारे दरवाजे, और वो भी बड़ी अच्छी तरह से ये दरवाजे बंद किए कि कहीं भी किसी भी शख्स का देख लेने का कोई चांस बाकी न रहे। गुनाह करें तो ऐसी काल कोठरी में छुप करके 7 दरवाजों के पीछे, जहां किसी के देख लेने का कोई थोड़ा भी चांस न रहे। अपनी तरफ से इस औरत ने पूरी कोशिश की। वो क्या है कि देख लिए जाने का 1% भी कोई चांस न हो। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? वगल्लक़तिल अबवाब। मेरे ख्याल में पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। वगल्लक़तिल अबवाब। अल अबवाब भी कहा है जमा। मैंने आपसे ये भी कहा था अभी, ये एक दरवाजे की बात नहीं है, बल्कि रिवायतों में कि 7 दरवाजे। तो ये सारे दरवाजे एक एक करके बंद किए और बड़ी अच्छी तरह से बंद किया। गल्लक़तिल अबवाब। देख लिए जाने का अदना चांस भी, जर्रा बराबर चांस भी उसने नहीं छोड़ा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उसके बाद क्या होता है? ये सब करने के बाद एक आखिरी बात जो मैंने सोचा आपसे कहने के लिए वो ये है कि आम तरीके से जो इस तरह के घरों में रहते हैं, बड़े बड़े सरदारों के, मिनिस्टरों के और बड़े बड़े जो है साहूकारों के घरों में रहते हैं, तो काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं, वही ये काम अंजाम देते वही ये काम अंजाम देते हैं। थोड़ा नोट कीजिएगा, ये आखिरी पॉइंट है इस टुकड़े का। वही ये काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ ये बात की वगल्लक़तिल अबवाब, ये उस सूरत में भी हो सकता है जबकि ये सिर्फ हुक्म दे और खुद ही जाकर के बंद न करे। लेकिन जो जुमला अंदाज है ये बता रहा है
कि ये काम हालांकि नौकरों का होता है, लेकिन इसने नौकरों पर भी एतमाद नहीं किया इस मामले को लेकर के। इतनी राजदारी, इस तरह से इसे सीक्रेट रखना था, कोई भी इसको जान न सके, उसके लिए नौकरों पर भी इसने एतबार और एतमाद नहीं दिखाया और खुद ये काम अंजाम दिया। खुद हर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। वरना ये भी शक्ल होती है कि खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस घर में, अगरचे कि उनको अच्छी तरह से उन इज्जत के साथ रखने की बात अजीज मिस्र ने कही थी, लेकिन बहरहाल ये उन लोगों के खरीदे हुए गुलाम थे। उसकी हैसियत से भी अगर ये हुक्म देती अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ को खुद ही कि जाओ सारे दरवाजे बंद कर दिया, सुने नहीं, मेरा ऑर्डर है ये, जल्दी जाओ बंद करके आओ सारे दरवाजे, वरना तुम्हारे साहब से मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। हाँ, ये अंदाज होता है आम तरीके से ऐसे मौके पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उसने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ऐसा हुक्म नहीं दिया, क्योंकि राजदारी जो बरतनी है तो मुकम्मल तरीके से उसके लिए उसने ये सोचा कि मुझे खुद ही सब कुछ करना है। और प्लानिंग का एक हिस्सा ये हुआ कि हर दरवाजे को उसने यूसुफ को अपने साथ लाते हुए हर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करते हुए आई। और जब 7 दरवाजों के पीछे आगे जो है 7 दरवाजों के बाद अपने कमरे में पहुंचती है, अपनी ख्वाबगाह में पहुंचती है, इतना सब इंतजाम करने के बाद कि किसी के आने का और उनके देख लिए जाने का कोई चांस न रहे, कोई चांस नहीं। ऐसे वक्त में आदमी बहक जाता है, चलो कौन देख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, बहती गंगा है हाथ धो लो। तो ये आजमाइश मेरे भाइयों सख्त होती है ऐसे मौके पर, जहां इतनी तन्हाई मिल जाए और देख लिए जाने का, पकड़े जाने का बज़ाहिर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई अंदेशा ना हो, तो कदम के फिसल जाने का इम्कान भी, ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये सारी चीजें ये बताने के लिए मेरे भाइयों कि ये फितना कितना शदीद था, आजमाइश कितनी सख्त थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह के ये नेक बंदे किस तरह से इन सख्त आजमाइशों में भी खरे उतरते हैं और अपने रब के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते हैं और अपने आप को बुराई से कैसे बचाते हैं। यही तो चीजें हैं जो हमें सीखनी होती है इसमें, यही चीजें हमें सीखनी है मेरे भाई, और यही है नफ्स का तज़किया। इसी को हमें ज़हन में रखना है। क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वग़ल्लक़तिल अबवाब, दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर दिया, वक़ालत हैत लक, दरवाजे एक एक करके बंद करते हुए जब अपने बिस्तर पर पहुंचती है तो बिस्तर पर पहुंच करके कहती है यूसुफ से, हैत लक, हैत लक, वक़ालत हैत लक, वक़ालत हैत लक। अरबी में कहा जाता है, अरबी में ये जो सेंटेंस है, ये कोई औरत अपने आप को किसी मर्द के मुकम्मल तरीके से हवाले करने के लिए जो कैफियत अपनाती है, जो शक्ल अपनाती है, जो तरीका अपनाती है, अपने आप को बिल्कुल जो है पेश कर दिया कि मेरा जिस्म तुम्हारे हवाले, मेरी प्यास बुझा दो। उसके लिए अरबी में ये लफ्ज यानी इस तरह का अंदाज, ये मेथड जो है, तरीका, ये उसलूब जो है, ये स्टाइल इस तरह का होता है कि वकालत हई तलक, वकालत हई तलक, हई तलक, कालत उसने कहा, हई तलक ये सब तुम्हारे हवाले है, आ जाओ यूसुफ,
मेरी प्यास बुझा जाओ। है तलक, अपने आप को पेश कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। 7 दरवाजों के बाद बिल्कुल अकेले में, जहां यूसुफ और अजीज मिस्र की बीवी के अलावा कोई नहीं है और किसी के आने का कोई चांस भी नहीं छोड़ा गया है और किसी के देख लिए जाने का, देख लेने का भी कोई खतरा मोल नहीं लिया गया है। इस तरह की परफेक्ट प्लानिंग के साथ अपने आप को ये औरत हवाले करती है यूसुफ अलैहिस्सलाम के। लो यूसुफ, आ जाओ, मेरी प्यास बुझा जाओ। वकालत है तलक, है तलक इसको ऐसे भी पढ़ा गया है तलक, इसको ही तलक भी पढ़ा गया है, इसको हाइसो की तरह से हाई तो लक भी पढ़ा गया है। तकरीबन 6 तरीके से, 5 तरीके या 6 तरीके से इसको पढ़ा गया है। वकालत हई तलक, हई तलक, लेकिन माना इसका यही होता है, आ जाओ, आ जाओ, हई तलक, यूसुफ आ जाओ, मैं तैयार हूं, मेरी प्यास बुझा दो। मेरी ख्वाहिश जो उबल रही है, ये शहवत की ख्वाहिश, ये शहवत है, इंसानी शहवत, ये जो है जिना की ख्वाहिश, बदकारी की ख्वाहिश, ये शर्मगाह की शहवत है। मेरी इस शहवत को बुझा दो, तुम्हारे हाथ में है इस शहवत को बुझाना। वकालत है तलक, ये अंदाज था पूरा मेरे भाई। ये अजीज़े मिस्र ने इस तरीके से पूरी तैयारी की और ये परफेक्ट प्लानिंग की उसने। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश कितनी सख्त थी, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि एक तो उसी के घर में रह रहे हैं, उन्हीं का जो कुछ भी है अल्लाह ताला का फضل है, उसका करम है, लेकिन सबब तो इनको बनाया अल्लाह ताला ने। उन्हीं के घर में रह रहे थे, उन्हीं का दिया हुआ खा रहे थे और उनके साथ अच्छा रहना है उनको, उस औरत के साथ भी अच्छा बना के रखेंगे, तब जो है अजीज़े मिस्र को शिकायत नहीं करेगी, वरना ये अजीज़े मिस्र को शिकायत करके घर से बेघर हो जाएंगे। सारी चीजें उस सबसे बढ़ करके इंसान थे और इंसानों में जो ये शहवत होती है, किसी खूबसूरत औरत को तन्हाई में आदमी देख ले और उसके पकड़े जाने का कोई अंदेशा ना हो, और औरत भी अपने आप को पूरे तरीके से हवाले किए हुए है, और ऐसे वक्त में आदमी की शहवत किस तरीके से मचल जाती है, ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। इन सब को जो है जहन में रखिए कि ये फितना कितना शदीद था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते हैं उस वक्त, उन्होंने क्या जवाब दिया औरत का? वक़ालत है तलक, यूसुफ आ जाओ, प्यास बुझा जाओ। क़ाल, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। माअज़ल्लाह, इसे अरबी में मफ़ूल कहा जाता है, फेल वहां पर महज़ूफ है, यानी वर्ब यहाँ पर एक जो है उसे हस्फ कर दिया गया है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है और जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं उसे जिक्र नहीं किया जाता है। उसको यूं समझ लीजिए कि हिडन है वहां पर, अरबिक इंग्लिश में अगर आपको कहना हो तो ये है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, माअज़ल्लाह। ये है एक नेक दिल इंसान की जबान ऐसे फितने के मौके पर। यह है नफ्स का तज़किया। अपने नफ्स का तज़किया ऐसा करना है मेरे भाइयों कि 7 दरवाजे भी बंद करके बिल्कुल तन्हाई में गुनाह की दावत दी जाए, तब भी क्या है, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह।
यानी इस मौके पर भी याद किसकी आ रही है? अल्लाह। ये नेक दिल इंसान की पहचान होती है। और जब ऐसे मौके पर अल्लाह की याद आती है ना, तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचा लेता है, प्रोटेक्शन भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। लेकिन अल्लाह की याद तो आए ना, हाँ, अल्लाह की याद तो आना है ना। ऐसे मौके पर शैतान गालिब आ जाता है, अल्लाह की याद नहीं आती है, इसीलिए लोग गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे मौके पर अगर अल्लाह की याद आ जाए, जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह की याद, ऐसे मौके पर अल्लाह की याद आ जाए तो बंदा जबान से क्या कहता है? माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। अब ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं, ऐसी परेशानी का मामला है कि या अल्लाह तू ही मालिक और तू ही बचाने वाला, अब यहाँ बचने की कोई सबील नहीं है, बचाने वाला सिर्फ तू है। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, माअज़ल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ये है अल्लाह का जिक्र। और जब ऐसे मौके पर अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह की पनाह में जाओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। पनाह में चले जाओ उसके। क्या किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह ताला की पनाह में चले गए। उनकी जबान से ये निकला, अल्लाह ताला को याद किया तो तन्हाई का ये लम्हा भी अल्लाह ताला से गाफिल नहीं करेगा। और अल्लाह ताला को याद करके गुनाह का पूरा इंतजाम हो चुका है और परफेक्ट इंतजाम किया गया है। देख लिए जाने का, पकड़ लिए जाने का कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पर भी जब ये शऊर और ये फीलिंग इंसान के अंदर गालिब आ जाए कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ये है अल्लाह का जिक्र। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये है मेरे भाइयों आज के दर्स का तज़किया, तज़किये नफ्स। ऐसे हालात में किसकी याद? अल्लाह की याद। माअज़ल्लाह। यानी एक तरफ तो दावत है अजीज़े मिस्र की बीवी की, और सभा बड़े परफेक्ट इंतजाम के साथ सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देने के बाद, किसी के आने का कोई चांस न रह जाए उसके बाद, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये एहसास कि हम अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में है। ये फीलिंग, ये ऐसी फीलिंग है मेरे भाइयों कि ये आदमी जब तन्हा रहता है, अकेला भी रहता है, तो उस तन्हाई में भी इंसान को प्रोटेक्शन मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। शैतान गालिब ना आ जाए। वो अल्लाह की याद होगी तो शैतान गालिब नहीं आएगा। कहते हैं जहां रहमान है वहां शैतान का काम नहीं, और जहां से रहमान निकल जाता है वहां शैतान गालिब आ जाता है। ये पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज़े मिस्र की बीवी पर शैतान गालिब था और वो कोशिश कर रही है कि यूसुफ को भी अपने इस जाल में फंसा ले और बदकारी पर आमादा कर दे। एक तरफ ये था और दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का मसला ये है कि इनके दिल में, इनके शऊर में,
इनकी आगही में और इनकी फीलिंग में अल्लाह ताला की याद बसी हुई है। रहमान है यहाँ पे, और रहमान की हिफाजत चाहते हैं, उसकी हिफाजत में रहना चाहते हैं, तो कहते हैं माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। और जब रहमान की तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ये किसी दुनिया की हुकूमत की प्रोटेक्शन नहीं है, ये दुनिया की हुकूमत की तरफ से किसी तरह का की हिफाजत का, सिक्योरिटी का ये इंतजाम नहीं है, जहां मुख्तलिफ गलतियां हो जाती हैं और सिक्योरिटी के बावजूद भी आदमी के साथ अनहोनी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है दुनिया में, ये तो अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन है ना। माअज़ल्लाह, क्या कह रहे हैं, अय अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ। उसको याद किया अपने रब को, और जो भी ऐसे मौके पर अपने रब को याद करता है, ये अल्लाह का जिक्र है। जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ताला उसको याद करता है और याद रखता है और उसे प्रोटेक्शन देता है। और जब रहमान की तरफ से प्रोटेक्शन आ जाए, तो शैतान की जाल और शैतान की तरफ से चाहे कितना ही खतरनाक जाल और कितनी ही खतरनाक किस्म का नेटवर्क हो, ये सब की सब तहस नहस हो जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, और रहमान का प्रोटेक्शन ये गालिब रहता है और बंदे की हिफाजत होती है। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क़ाल माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, बस इतना ही कहा, अल्लाह को याद किया, अल्लाह को याद किया। अल्लाह को याद करने का फायदा, ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, इस तन्हाई में भी अल्लाह ताला देख रहा है। और जब ये एहसास, ये शऊर, ये फीलिंग गालिब आ जाए, तो यकीन मानिए मेरे भाइयों कि इंसान चाहे कहीं भी हो, और गुनाह की दावत कितनी ही जो है बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही सख्त क्यों ना हो, इंसान को हिफाजत अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है, जब अल्लाह का तकवा उसके दिल में हो, अल्लाह ताला की खशियत उसके दिल में हो। ये है माअज़ल्लाह। फिर आगे क्या, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। तीन टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, और तीनों के बीच में वाव नहीं इस्तेमाल किया गया अरबी जबान के लिहाज से। वरना अरबी जबान का ये कायदा है कि एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जब आता है, तो ज्यादातर ये होता है कि बीच में वाव, दो सेंटेंस के बीच में वाव यूज किया जाता है, या फा यूज किया जाता है, या सुम्मा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तीनों सेंटेंस अलग अलग है। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय, अहसन मसवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। अब पहला जो है टुकड़ा ले लीजिए इसका, इन्नहु रब्बी यकीनन ओह। इन्ना आप जानते हैं ताकीद के लिए अरबी ज़बान में आता है, इन्नहु यकीनन ओह, हु प्रोनाउन है, यकीनन ओह रब्बी मेरा रब है, इन्नहु रब्बी यकीनन ओह मेरा रब है, यकीनन ओह मेरा रब है। कौन मेरा रब है, क्या कहा, यकीनन ओह मेरा रब है। कौन ये मेरा रब, यकीनन ओह मेरा रब है, इन्नहु रब्बी। तो यहाँ हु इस्तेमाल किया गया है। जो हु क्या है मेरे भाइयों, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। इन्नहु, इन्नहु, हु प्रोनाउन है। प्रोनाउन, इससे पहले कौन सा नाउन है जिसकी तरफ ये लौट रहा है प्रोनाउन,
नहू में हु ये किसके लिए इस्तेमाल किया है? इसी के जस्ट जो है पहले अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया माज अल्लाह है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? माज अल्लाह, अल्लाह ये लफ्ज आया हुआ है, तो हु ये अल्लाह की तरफ, तो माना क्या हुआ? इन्नल्लाह रब्बी, इन्नल्लाह रब्बी, इन्नल्लाह रब्बी, यकीनन ओह मेरा रब है, यानी अल्लाह ताला मेरा रब है। माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूँ, जो अल्लाह की मेरा रब है। और रब के अंदर ये माना होता है पालने वाला, देखने वाला, निगरानी करने वाला, हर तरह की जरूरतों को पूरी करने वाला, और